جامشورو انڈس ہائی وے مانشٹ کے قریب مسافر وین اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم۔ ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق، حادثہ اوورٹیکنگ کرتے ہوئے پیش آیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا۔ کنتھکوٹ کے گریڈ اسٹیشن میں ٹرالی فلیشنگ کے دوران آگ لگنے سے ایس ڈی او گریڈ اسٹیشن حاکم علی بھلکاٹی سمیت 2 افراد زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کنتھکوٹ گریڈ اسٹیشن میں آگ لگنے کے باعث بجلی کی فراہمی بند۔ جھنگ ماہی ہیر اسپورٹس کمپلیکس میں پولیس کرکٹ ٹیموں میں دلچسپ مقابلے۔ ڈسٹرکٹ پولیس فیصل آباد نے سٹی ٹریفک پولیس کو شکست دے کر فائنل میں اپنے نام کر لیا۔ فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم۔ اور موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی کہروڑ پکا میں خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ دکانوں پر خریدار نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار پریشان، غریب افراد خشک میوہ جات سے بھی محروم۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر خانے وال سے تحریک انصاف کی ٹکٹ اور پی پی 206 نوری نشاط کی قیادت میں ایک بہت بڑا قافلہ جو آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر لوگ مارچ کے حوالے سے خانے وال سے میڈم نشاط پی پی 206 سے ایک بہت بڑا قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں میڈم نوری نشاط سے۔ جی میڈم بتائیے گا، قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہا ہے، کیا میسیج دینا چاہیں گے خانے وال کے عوام کو؟ جی السلام علیکم سب خانے وال کے غیور عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم عمران خان کا پورا ساتھ دیں گے، بھرپور شمولیت اختیار کریں گے اور سب میرے بھائی بہن سب آئیں اور ہم نے سارا انتظام کیا ہوا ہے انشاءاللہ، ٹرانسپورٹ کا بھی، کھانے پینے کا بھی، اور ان کو ساتھ پورا بھرپور انداز سے وہ شامل ہوں۔ اور ہم نے یہ رجیم چینج کے خلاف، جو رجیم انہوں نے چینج کیا اس کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے اور ہم سارے ہی جا رہے ہیں اسلام آباد۔ ہم بیٹھیں گے جب تک ہمارے لیڈر کی کال آئے گی، ان کا پیغام پورا سن کے اس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے انشاءاللہ۔ بھائی بتائیے گا کتنے بجے آپ کا خانے وال سے قافلہ روانہ ہوگا؟ ہمارا قافلہ آج جا رہا ہے 6 بجے شام کوٹ انٹرچینج سے، ساؤتھ والے دوسرے قافلوں کے ساتھ مل کے ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، مسٹر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہول پی پی 206 سے میڈم نوری نشاط۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ 6 بجے شام کو انٹرچینج سے جو ہمارا قافلہ، بھرپور قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ خانے وال کے شہری کو پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ 6 بجے انٹرچینج پہ پہنچ جائیں۔ جی جامشورو انڈس ہائی وے مانجھنڈ کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جامشورو کی طرف آنے والی کار اور سامنے سے آنے والے مسافر وین اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہوا۔ حادثہ اوورٹیکنگ کرتے ہوئے پیش آیا۔ کار سوار عباس انصاری اور موٹر سائیکل سوار شہزور گل منگریو موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 2 افراد ندیم منگریو اور ظفر شاہ بھی زخمی ہوئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر گاڑیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے تھانہ دھلے پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2220 گرام منشیات برآمد کر لی ہے۔ سٹی پولیس آفیسر عمر سلامت نے ڈکیتوں، چوروں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں، جبکہ ایس پی سٹی وقار عظیم کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ دھلے انسپیکٹر ساجد سوہل اور دیگران پر مشتمل پولیس ٹیم نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چرس برآمد کر لی ہے۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ ملتان میں شاخ مدینہ نہر سے ملنے والی ٹیکسی ڈرائیور کی لاش کا معمہ حل کر لیا گیا ہے۔ قادر پورہ پولیس نے مقتول تصور کے اندھے قتل کو ٹریس کر لیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف ملتان شیخ نوید ناصر۔
डेरा गाजी खान में मुकामी सीनियर सहाफ़ी सदर प्रेस क्लब बख्त खान खोसा की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें कस्टम हुकाम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ नजर खान भट्टी से। जी नजर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान पुल डाट पर। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी शहरियों का सराफा पुरअमन एहतजाज है। तफसीलन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ सदर प्रेस क्लब बख्त खोसे को मुल्तान जो कस्टम हकाम है उन्होंने बुलाकर गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस वक्त साबका सदर और ग्रुप लीडर शेर अकबर बुज़दार भी मौजूद हैं। आइए मजीद गुफ्तगू इनसे करते हैं, इनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। जी नज़र, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया और आपके हम चैनल का भी शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे इस एहतजाज को कवर कर रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि जो क्वेटा रोड है ये कस्टम हुकाम के लिए एक सोने की चिड़िया से कम नहीं है। यहाँ पर इनकी बोली लगती है कि किस इंस्पेक्टर को कहाँ तैनात करना है। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेडियस पर इनके 10 नाके लगे हुए हैं। आज तक ये बताएं कि इन्होंने एक दिन में इनकी कितनी कार्रवाइयाँ होती हैं। अब जो बख्त खोसा है, हमारा दोस्त है, हमारे सदर हैं, उनको जिस तरह अपने ऑफिस में चाय की दावत पर बुलाकर गिरफ्तार किया गया है और उन पर इल्ज़ाम ये है कि आपने रोड ब्लॉक करवाया। जहां पर रोड ब्लॉक हुआ है मैं मौके पर मौजूद था, मैंने उधर लोगों के साथ मुज़ाकरात किए, जिन ड्राइवरों पर तशद्दुद किया था, जिनको इन्होंने मारा पीटा था, उनसे मैंने मुज़ाकरात किए थे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है कि कस्टम हकाम ने नाजायज़ गिरफ्तारी की है, जो कि सदर प्रेस क्लब बख्त खोसा साहब वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। हमारी जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि ये जो पर्चा है इसको खारिज किया जाए। जी MNA जरताज गुल, MPA मोहम्मद हनीफ खान पताफी और कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्टा ने अहम मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया है। मजीद देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम की रिपोर्ट। MNA जरताज गुल, MPA मोहम्मद हनीफ खान पताफी और कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने डेरा गाजी खान की अहम शाहराह चौक चुरट्टा से तालीमी बोर्ड ऑफिस समेत अहम मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। SC हाईवेज मोहम्मद नवाज ने ब्रीफिंग दी। चौक चुरट्टा ता बोर्ड ऑफिस 3.5 किलोमीटर कारपेट रोड पर 28 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। कमिश्नर लियाकत अली ने 8 माह के अंदर मंसूबा को मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। इस मौका पर रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल और MPA मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने कहा कि शहर की तमाम सड़कों को महर्रावार बेहतर और कुशीदा कराएंगे। शहर की तामीर और तरक्की पर मुकम्मल फोकस किया हुआ है। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। कसूर पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनने और राहज़नी की 1.5 दर्जन वारदातों में मुलविस खतरनाक तारिक उर्फ तारकी टगेत गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान नाका लगाकर राहगीरों को लूटने की वारदातें करते थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP सिटी याकूब आवान की सरबराही में अहलकारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गईं। पुलिस टीमों ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए डकैत गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। SSP उमरकोट एजाज अहमद शेख ने डिस्ट्रिक्ट सब जेल उमरकोट का विजिट किया और सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने जेल इंचार्ज को हिदायत दी कि रोजाना की बुनियाद पर जेल बैरक्स की सफाई की जाए और दरिया पानी वगैरह का मुकम्मल इंतजाम हो। कैदियों के लिए नमाज पढ़ने की जगह मख्तस होनी चाहिए। SSP उमरकोट ने कैदियों से भी मुलाकात की और जेल नफरी के रवैये और दीगर मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और ज़रूरी अहकामात भी दिए। लोधरा में IG पंजाब की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 9 मुकदमात दर्ज करके 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान इश्तिहारी मुजरिमान, एक अदालती मफरूर और एक टारगेट ऑफेंडर भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से शराब, मनशियात और असलहा भी बरामद किया गया। लोधरा में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीन पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मुबैना कब्जा करवा दिया है। एहतजाज पर मुकदमात में फंसाने की धमकी देने लगा है। जर्मन नेशनल मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसने हमारे हकीकी भाई फारूक कुरैशी से 12.5 एकड़ सरकारी अलॉट ठेके पर लेकर रकम अदा कर दी और जमीन पर काश शुरू करा दी। लेकिन जब वो जर्मनी वापस चला गया तो उसके भाई ने वही सरकारी प्लॉट किसी और को ठेके पर देने की कोशिश की। इत्तला मिलने पर फौरी वतन वापस आया और पुलिस थाना सिटी दुनियापुर को मुतल्ला
मुदाखला किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई करने के बजाय बावर्दी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद ने मुबैना रिश्वत लेकर नफरी के हमरा कब्जा ग्रुप को कब्जा करवाने में मदद दी। मेरा रकबे का इशू चल रहा है, ये मेरा सगा भाई है। 12.5 एकड़ जो ना रकबा मैंने इससे ठेके पे ले रखा था, और इसने मेरे से ठेका लेने के बाद 2026 तक मैंने ठेका अदा किया हुआ है। इसने ठेके पे ठेका लेने के बाद मेरे से आगे रकबा जो है ना वो एक और पार्टी है झींगड़, उनको ये रकबा ठेके पे दे दिया और ज़बरदस्ती जो ना कब्जा करवा दिया। और ये 22 तारीख मोरखा 22 तारीख की बात है। ये रकबा साथ ही गांव के साथ अटैच है, गांव के साथ ही लगता है। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां पुलिस स्टेशन रोडाला रोड की हुदूद में रिहायशी चिरागा जमीन के तनाज़े पर तसादुम में खवातीन और बच्चों पर मुबैना तशद्दुद भी किया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन रुराला रोड की हदूद में चक नंबर 377 गाफबे में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ। इस मौका पर चद्दर ग्रुप ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि खरल ग्रुप और पुलिस ने मुबैना तौर पर साजबाज होकर हमारे घरों पर धावा बोल दिया और खवातीन और बच्चों पर मुबैना तशद्दुद भी किया। साडियां कुआरियां बेटियां दे आण के अंदर हुकूमत बखी पई है, उदो आदमी ने बुढ़े खसाद के साडियां कुआरियां बेटियां दे बखी पैणे, उन्हां दा साडे नाल घरों आण के नजान के साडे बर्तन भी चुक लैण, साडे रुपये वो भी उन्हां कढ लैण, साडे उदो आण के साडे हत्थों बैल खो लैण, उदो साडी बेइज्जती कीती ना, साडी कमीज़ां सारियां पाड़ के साडी बेइज्जती कीती। चद्दर ग्रुप ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि चक नंबर 377 गाफबे की हदूद में मौजूद चिरागा रिहायशी रकबा पर मुखालिफ ग्रुप कब्जा करना चाहता है और पुलिस मुबैना तौर पर उनके साथ साजबाज है। SHO साहब आए ते 2-3 गड्डियां पुलिस भी लेके आए ते इत्थे साडे बक्खी हत्ती पैन सानू डांगा मारियां ने, साडे गिरे बाहन भी पाड़ छड्डे ते आ मेरी बाजू SHO साहब मरोड़ी है, मेरे को मोबाइल छीनिया गया ते आ मोबाइल भी खराब कर गए, सानू सोटिया ना मार गए, मेरी बाजू खराब तोड़ छड्डी ने ते आ बाजी दा गिरा बाहन सारा पाट गया, बाह भी भन गए। इस मौका पर चद्दर ग्रुप की मजरूब खवातीन और मर्द हजरात ने मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मेरिट पर तफ्तीश करते हुए हमें हमारा हक दिलवाया जाए। जमीन साडे ना होगी, साडी अपनी जमीन है, शरागे दी असा जगह कमरे शमरे पास अपने हाथे बनाने वास्ते जमीन लई है। सिंधु साडे रिश्तेदार हैं, उन्हां वास्ते असीं इत्थे घर घुर बनाने हैं, सिलाब आ गया ते असीं जे चाहने हैं सानू जमीन दित्ती जावे। सानू पहले साडे कोल लेख पढ़ भी सारी है, असा करवाई होई ते फिर भी आके साडे नाल ज्यादती कीती ने। इलावा अजीम मजरूब खवातीन के मेडिकल के लिए उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चद्दर ग्रुप ने मजीद मुतालबा करते हुए SP जड़ावाला, CPO फैसलाबाद, RP फैसलाबाद और IG पंजाब हुए कहा कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए और हमारे साथ जो ज्यादती हुई है इसका अजाला किया जाना चाहिए। कैमरामैन हाजी कैफ अली के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, Metro 1 न्यूज, फैसलाबाद। ग्रिड स्टेशन में ट्रॉली फ्लशिंग के दौरान आग लगने से SDO ग्रिड स्टेशन हाकिम अली भलकाठी समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कनगोट ग्रिड स्टेशन में आग लगने के बायस बिजली की फराहमी बंद कर दी गई है। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, नारोवाल पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिम के कब्जे से 2 किलो जर्स बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बदनामी जमाना मुलजिम मनशियात फरोशी और चोरी समेत 29 मुकदमात में सजा याफ्ता है। मुलजिम को इंचार्ज चौकी बची की रिजवान अंजुम चीमा के हमरा टीम गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी जानिब थाना सिटी डनकाना पुलिस ने SHO बूटा डोगर की सरबराही में दौरान कार्रवाई शराब फरोश हारून मसीह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से विलायती शराब की 11 बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम हारून मसीह को ASI राना अशफाक ने हमरा टीम दौरान स्नैप चेकिंग गिरफ्तार किया। थाने अगोगी के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान डकैती और राजधानी की संगीन वारदातों में मुलविस खतरनाक डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अगोगी से जी अली इमरान। बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं, सियालकोट थाना अगोगी के इलाका में वारदात की कॉल मसूल होने पर SHO राजा हमाद और सब इंस्पेक्टर जमशेद सरवर मौका पर पहुंचकर डाकुओं का ताकब किया तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल रमजान
حفظان کی چھاتی پر 2 فائر لگے تو خوش قسمتی سے بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ ڈاکو نے کماد کی فصل میں نہ لے کر پولیس پارٹی پر آتشی اسلحہ سے فائرنگ کی۔ پولیس ٹیم نے حفاظت خود اختیاری کی خاطر جوابی فائرنگ کرتے ہوئے ملزمان کو گھیرا ڈال کر ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تو دوسرا ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم میں کوشاں ہیں۔ گرفتار ڈاکو کی شناخت وکاس عرف اشو کے نام سے ہوئی، جو ڈکیتی و راہزنی جیسی درجنوں وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ گرفتار ڈاکو کے قبضہ سے دوران واردات شہری علی حسن سے چھینا ہوا موبائل فون، نقدی، شناختی کارڈ، واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور اسلحہ ناجائز برآمد ہوا۔ پولیس ٹیم نے جرأت، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر خطرناک ڈاکو کو گرفتار کیا اور ڈی پی او فیصل کامران خصوصی ٹیم میں شامل افسران و جوانوں کو نقد انعام اور تحریفی اسناد سے نوازا گئے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ علی عمران، میٹرو 1 نیوز، اگوکی، سیالکوٹ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے صادق آباد میں فلاحی ادارے کی جانب سے مستحق معذور میں ویل چیئر کی تقسیم کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تحصیل بھر سے معذور افراد کی تقریب میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے محمد شہباز میرانی نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ صادق آباد میں فلاحی ادارے کی جانب سے مستحق معذور میں ویل چیئر کی تقسیم کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل بھر سے معذور افراد نے تقریب میں شرکت کی۔ ضلعی صدر سلیم کمبو کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 600 ویل چیئر تقسیم کی جا چکی ہیں اور آج ہم نے 30 مستحق معذور افراد میں شفاف طریقے سے ویل چیئر تقسیم کی ہیں۔ ویل چیئر کے حصول کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے معذور افراد کے اندر فری ویل چیئر تقسیم کیا ہے، جو تقریباً ہمارے ضلع میں 600 افراد کو ہم آج تک دے چکے ہیں۔ ہمارا اعلان ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس جو بھی معذور آئے ایک اپلیکیشن کے اوپر ہم اس کو فری ویل چیئر دیں گے۔ دوسری جانب ویل چیئر ملنے پر معذور افراد کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ پہلے بھائی میں بہت مشکل میں تھا، ابھی میں خود انشاءاللہ اس پہ چال پھر سکوں گا۔ ادارے کی طرف سے مجھے آج ویل چیئر ملی ہے، اس کا بہت شکر گزار ہوں بھائی۔ ایک معذور شخص کا کہنا تھا کہ میں پیدائشی طور پر پولیو کے مرض کی وجہ سے معذور ہوں، میری زندگی بہت مشکل تھی، سفری مشکلات کا سامنا تھا، آج مجھے ویل چیئر ملی ہے، میری خوشی کی انتہا نہیں۔ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو کم کرنے والوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شہباز میرانی، میٹرو 1 نیوز، صادق آباد۔ فقیر والی کے قریب تیز رفتار مسافر بس کے حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ہارون آباد کے نواحی علاقے فقیر والی میں تیز رفتار مسافر بس موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں اطہر، اشفاق اور شاہد شامل ہیں۔ مسافر بس لاہور سے فورٹ عباس جا رہی تھی، فقیر والی کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کشمور میں معمولی سی بات پر تشدد کر کے دیوروں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہونے والی 4 بچوں کی ماں کے قاتل تاحال پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے ہیں۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مقتولہ کی ماں اور بہنوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ملزم جہانگیر اور عالمگیر کڑور نے 4 بچوں کی ماں کو گھر میں رسیوں سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنا کر اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ 2 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود کشمور پولیس قاتلوں کو تاحال گرفتار نہیں کر سکی ہے اور ابھی تک قاتلوں کی جانب سے موت مار دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مظاہرین نے اپیل کی ہے کہ مقتولہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ سرکاری کالجز کے 66,000 طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میرس انتظامیہ کے خلاف ایس یو پی طلبہ ونگ نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس وقت جو ہیں 2 بیچیں پھنسی ہوئی ہیں ادھر، بیچ 2022 اور 2021۔ 2021 کو جو ہے 2021 کی دسمبر میں پاس آؤٹ کرنا تھا اور ابھی تک جو ہے اس کے پارٹ 2 کے پیپر نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہ 500-1000 اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، 66 کالجز ہیں سکھر اور لارکانہ ریجن کے اندر، ان کے ساتھ اس میں اندر 10 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی 500-1000 اسٹوڈنٹ نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ آدھی سندھ کے اندر جو ہے کالجز ہیں 66، وہ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی انتظامیہ ان کے ایفیلیٹیڈ کالجز ہیں، وہاں پہ BA BSc اور BCom اسٹوڈنٹ کے ساتھ
साथ बरसों से जो है जुल्म किया जा रहा है। अभी हमारी जो बैच है 2021 वाली, उसको दिसंबर में पास आउट होना था प्रीवियस ईयर, अभी तक वो जो पास आउट नहीं हुए। और उसके बाद जो 2022 वाली बैच है उसके पार्ट 1 के पेपर जो है 2022 में ही लेने थे जनवरी तक, अभी तक उनके नहीं लिए गए। उनका 1 साल और हमारे 2021 बैच है उसके 2 साल जान को गए। टूबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन परचेज मॉनिटरिंग एंड एग्जामिनिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डीसी टूबा मोहम्मद अरशद भदर ने की। इस इजलास में डीपीओ टूबा राना शुएब महमूद, पीआरओ एएसआई मोहम्मद अताउल्ला, एएससी कमालिया चौधरी, गुलाम मुस्तफ़ा जट, एएसपी कमालिया अहमद नसरुल्लाह मलिक, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हाजी मोहम्मद असलम, शुगर मिल्स के नुमाइंदगान, किसान तंजीमों के नुमाइंदगान, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान, सीनियर सहाफ़ी शरीक हुए। डीसी टूबा ने कहा कि पंजाब में शुगर मिल्स 25 नवंबर से काम शुरू कर रही है और इस बार हुकूमत पंजाब ने गन्ने की कीमत फी मन 300 रुपए मुकर्रर की है। तमाम शुगर मिल्स मालकान 15 दिन के अंदर अंदर किसानों को गन्ने की अदायगी करने के पाबंद होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ हालिया आरिफ नदीम की सरबराही में एफएफसी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि चावल की काश्त वाले इलाकों की ज़मीनों में फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, जिंक और बोरान की शदीद कमी वाक़ हो चुकी है। उन्होंने काश्तकारों पर जोर दिया कि वो एफएफसी की अमली ज़राई और तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपनी चावल की पैदावार में दुगना इजाफा करें। इंचार्ज एफएफसी ज़राई शोबा फार्म एडवाइजरी सीनियर तारिक जावेद और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सर्विसेज एफएफसी हसन रजा ने कहा है कि ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी की बुनियादी वजह खादों का गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल है। खादों के मुतवाज़िन इस्तेमाल के जरिए पाकिस्तान में चावल की पैदावार में 50% से ज़ायद इजाफा मुमकिन है। जतोई टीएचक्यू अस्पताल में एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से आगाही हफ्ता मनाया गया। इस सिलसिले में एमएस डॉक्टर आतिफ रजा राना की क़यादत में सेमिनार और आगाही रैली भी निकाली गई। एमएस डॉक्टर आतिफ रजा, डॉक्टर सजाद अहमद, डॉक्टर अमजद शहजाद, डॉक्टर एजाज ने बात करते हुए कहा कि एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से हफ्ता मनाने का मकसद शहरियों में आगाही फराहम करना है। शहरियों को खुद से एंटीबायोटिक अद्वियात का बेदरीग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अताइयों के कहने पर एंटीबायोटिक अद्वियात नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। एंटीबायोटिक अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। नारोवाल में मुख्तलिफ अताइयों की क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाजी की हिदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल ज़ुहैब अहमद अंजुम ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम के हमरा गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले मुख्तलिफ अताइयों के क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अरसलान क्लिनिक, रहमान लेबॉर्ट्री को और इसके साथ कार्डियोलॉजिस्ट की अदम मौजूदगी और गुलफाम डेंटल क्लिनिक को पहले से लगाई गई सील को गैर कानूनी तौर पर तोड़ने के जुर्म में सील करके मजीद कार्रवाई के लिए गैस लाहौर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भेज दिया है। और यहाँ आपको बताएंगे पाकपतन में इदारे रेस्क्यू 1112 की नई एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स पाकपतन में मुनाकिद की गई, जिसमें डीसी पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन, एडीसी सलाहुद्दीन, डीओ इमरजेंसी रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान अहमद रजा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डीसी पाकपतन ने कहा कि नई एम्बुलेंसेस से हादसात का शिकार लोगों को बेहतरीन सहूलियात मुयसर आ सकेंगी और रेस्क्यू के इदारे में मजीद भी बेहतरी लाते रहेंगे। रेस्क्यू नौजवानों ने डीसी पाकपतन को तकरीब में पहुंचने पर सलामी पेश की और आइंदा मजीद बेहतर काम करने के अज़्म किया। दादू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजामिया की संगीन गफलत सामने आ गई है। अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को खतरनाक कुत्तों के रहम करम पर छोड़ दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर अस्पताल में खतरनाक कुत्ते दंदनाते फिरने लगे। सिविल अस्पताल में कुत्तों के घूमने की फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि खतरनाक कुत्ते कैसे घूम रहे हैं। सियासी और समाजी हलकों ने लापरवाही करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
शेरगढ़ के नवाही गांव का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 4 साल से बंद पड़ा है। गांव की बच्चियों को तालीमी अमल जारी रखने के लिए कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 4 साल से लगे तालों का आज तक किसी अफसर ने नोटिस तक नहीं लिया। स्कूल में जाबजा गंदगी के ढेर, ताफुन, भूत बंगले में तब्दील इमारत और जंग आलू ताले बच्चियों के तारीख मुस्तकबिल पे नोहा कुना है। अहल इलाका और गाँव के नंबरदार का कहना है कि मुतादिद बार अफसरान को गुजारिश करने के बावजूद स्कूल में तदरीसी अमल शुरू नहीं किया जा सका। देहातियों का कहना है कि इतने बड़े गांव में आज के इस दौर में भी लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल का बंद होना डीसी ओकाड़ा की खामोशी और सीईओ एजुकेशन की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। ये अरसा 4 साल से बंद है। मेरा मुतालबा है डीसी और सीईओ एजुकेशन से कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और इस स्कूल की बहाली जो है ना वो कर दें। यहाँ पर आपको बताएं, झंग माही हीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुलिस क्रिकेट टीमों में दिलचस्प मुकाबला हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद ने सिटी ट्रैफिक पुलिस को शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया है और फातेह और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए गए हैं। इस सिलसिले में मजीद बता रहे हैं इमरान अंसारी अपनी इस रिपोर्ट में। झंग के माहिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सजा क्रिकेट मेला, जिसका एहतमाम पंजाब पुलिस ने किया। क्रिकेट टूर्नामेंट में झंग के अलावा टोबा टैक्सिंग, चिन्योट, फैसलाबाद पुलिस की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब से पहले फैसलाबाद पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के दरमियान फाइनल मैच हुआ। डीपीओ राशिद हदायत और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने मेंबर सूबाई असम्बली कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार हैदर अली नांगा, अंजमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान समेत दीगर मेहमानों के हमरा फाइनल मैच देखा। सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीम ने पहले खेलते हुए 161 रन बनाए, जबकि फैसलाबाद पुलिस ने 162 रन का टारगेट 16वें ओवर में पूरा करके जीत अपने नाम कर ली। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में जो शुरू किया है, और इसमें सबसे जो बड़ा किरदार है वो हमारे लड़कों का है, जिन्होंने जो है अंत तक मेहनत की है। दूसरी तरफ जो ट्रैफिक पुलिस की टीम थी, काफ़ी अच्छी टीम थी और उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया है, लेकिन मेरे लड़कों ने बहुत मेहनत की है। डीपीओ मोहम्मद राशिद हदायत का कहना था कि पुलिस अफसरान और एहलकार रूटीन की खासी सख्त ड्यूटी देते हैं, लेकिन इनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए तफरीक के मौके ना होने के बराबर हैं। सिटी पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस के दरमियान खेला गया। इसमें सिटी पुलिस ने इसमें कामयाबी हासिल की। रीजनल लेवल पे आरपीओ साहब के ज़ेर कमांड जो है वो मुख्तलिफ मुकाबला जारी हैं। इसमें ज़िला झंग में हमें क्रिकेट के ये जो मैचेज़ हैं इनकी मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। सारे के सारे मैचेज़ यहाँ पे उन्होंने इनकाद किया और आज फाइनल भी बखैर वफियत हो गया। डीपीओ मोहम्मद राशिद हदायत ने डीसी झंग मोहम्मद अरशद भट्टी के हमरा जीतने और रनर अप टीमों के खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज। और यहाँ आपको बताएंगे, चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूक कहते हैं माहिरीन तालीम और सनतों का इत्तेहाद बहुत अहम है। 1 मेगावाट से ऊपर सनत अपनी बिजली खुद पैदा कर सकती है। मुल्क में बिजली के ऑटोमेटिक मीटर्स लगाए हैं। मुकामी यूनिवर्सिटी में 7-11 चैलेंज की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूक थे। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूक ने कहा, मेरे पास 300 कंपनियां हैं। 2 साल में 32 अरब फाइनेंसिंग के 912 मंसूबे किए। पाकिस्तान में 26.5% लोग यानी 5.5 करोड़ अफराद बिजली की सहूलत से महरूम हैं। के इलेक्ट्रिक की चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर नाज खान ने कहा, तवानाई के शोबे में हमें एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश की है। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूक, हबीब यूनिवर्सिटी के सदर वासिफ रिजवी, माहौलियाती सहाफ़ी आफिया सलाम और के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद मोनिस ए अलवी ने शिरकत की। जीतने वाले उम्मीदवारान में इनामात भी तकसीम किए गए।
वर्जिन एटलांटिक ने मुतासरीन सैलाब तक अद्वियात की फराहमी के लिए बेस्ट वे ग्रुप के साथ इश्तराक कर लिया है। आपको बताएं कि हैदर चौधरी CFO बेस्ट वे ग्रुप मिस्टर बेन क्रम्प वर्जिन एटलांटिक के साथ लंदन हैथरो में वर्जिन एटलांटिक कार्गो के हवाले से हैंडलिंग में 20 टन से जायद अहम अद्वियात बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचाई गई, जहां ये हालिया सैलाब की तबाही और उसके नतीजे में होने वाली इंसानी तबाही के मुतासरीन में तकसीम की जाएंगी। बेस्ट वे ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैदर चौधरी ने कहा कि हमारी टीमें पाकिस्तान में ग्राउंड पर हैं और खुद देख रही हैं कि इन दवाइयों की बीमारियों से निपटने के लिए कितनी अशद ज़रूरत है। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको बहावल नगर से, जहां निजी कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला 2022 की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर रहनुमा सुहेल खान और CEO म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर शफीक सईद बलोच थे। तकरीब में 4 मुख्तलिफ टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें चैंपियंस, कलंदर, बाजीगर, स्वैग शामिल हैं। स्पोर्ट्स गाला की ये रंगारंग तकरीब 4 रोज तक जारी रहेगी। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद सुहेल खान ने कहा, खेलों को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इवेंट करवाना इंतजामिया का बेहतरीन इकदाम है। CEO कॉलेज हासा डॉक्टर काशिफ बलोच का कहना था कि रोजमर्रा की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का फरोग देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको बताएं कि सर्दियों की शुरुआत होते ही लाड़काना शहर और उसके गिरदोनवा में गैस लोड शेडिंग से सर उठा लिया है और इसकी वजह से वहाँ पे लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की शुरुआत होते ही लाड़काना शहर और गिरदोनवा में गैस लोड शेडिंग ने सर उठा लिया। बिजली की लोड शेडिंग के सताए हुए अवाम को गैस लोड शेडिंग ने मजीद परेशान कर दिया। हुकूमत की जानिब से 3 वक्त खाना पकाने का वादा भी पूरा नहीं हो सका। पकाने तक की गैस भी नहीं आ रही, खाना पकाना तो भूल जाए। शहरी महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर हो गए, जबकि घरेलू सार्फिन, होटल और दुकानदारों का जीना अजीरन हो गया। नामो निशानी नहीं है, लाइट भी नहीं है यहाँ पे, हम परेशान हो गए हैं। शेडिंग है, गैस वालों की लोड शेडिंग है, वो तो उससे ज्यादा भी बढ़ गई है। बिजली की लोड शेडिंग होती है, सारा दिन गैस नहीं आता है, बच्चे स्कूल जाएं तो किस तरह जाएं, समझे ना। और सबसे बड़ी बात है बिजली का नाम निशान नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। बिजली और गैस सारा दिन गैस ही नहीं होता है। घरेलू सार्फिन समेत रेस्टोरेंट्स भी लकड़ियां और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि गैस सिलेंडर्स की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। शहरियों का मुतालबा है कि सुई सदरन गैस कंपनी लोड शेडिंग खत्म करें ताकि लोग 2 वक्त का खाना पका सकें और चैन का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। और यहाँ आपको बताएंगे पीर महल में सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म पकवानों की मांग में इजाफा होता जा रहा है। मछली हो या पकोड़े, समोसे, दुकानों पर रश दिखाई देता है। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म पकवानों की मांग में इजाफा हो जाता है। वो मछली हो या पकोड़े, समोसे, दुकानों पर रश दिखाई देता है। पीर महल में भी सर्दी का मौसम आते ही मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू इंसान को अपनी तरफ खींच के ले जाती है। वो मछली के पकौड़े हों या समोसे पकौड़े, इंसान बिना खाए रह ही नहीं सकता। और हमारा भी दिल करता है कि हम मछली खाएं, और मछली का रेट भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है और ये मछली भी बहुत अच्छी है। भाई के पकौड़े और समोसे न खाएं तो मज़ा नहीं आता। आप भी सारे पकौड़े और समोसे लेने हैं। ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद है। सर्दियों का मौसम अपनी आगोश में बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद हैं। कैमरामैन नवीद हुसैन के साथ आरिफ रजा। और यहाँ पर आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का से, जहाँ पर मौसम सरमा का आगाज़ होते ही कहरोड़ पक्का में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानों पर खरीदार ना होने की वजह से दुकानदार हजरात परेशान दिखाई देने लगे हैं। इस पर मजीद देखते हैं हसन खान रिन की रिपोर्ट। मौसम सरमा शुरू होते ही सर्दियों की सौगातें बादाम, चलगोजा, काजू, अंजीर और खजूर की दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन सर्दी शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की कीमतों में 3 गुना इजाफा हो गया है। खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए गाहक ना होने की वजह से दुकानदार हजरात परेशान दिखाई देने लगे हैं। दुकानदारों के मुताबिक चलगोजा 14,000 रुपए किलो से 18,000 रुपए किलो तक शहरियों का सबर आजमा रहा है, जबकि खजूर 250 से 350 रुपए तक, गरीब बादाम 2,000 से 2,500 रुपए तक, छिला हुआ साफ अखरोट 2,400 रुपए तक,
जबकि काजू 2000 से बढ़कर 24,000 तक पहुंच चुका है। मुल्क भर में जहां दूसरी अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, वहां पर सर्दियों के आगाज से ही सर्दियों की सौगातें भी महंगी हो चुकी हैं, जो शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कैरोल पका। और यहाँ आपको बताएंगे, पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने डेफ रीच और डेफ डेडिकेटेड के KFC ब्रांच का दौरा किया है। अमेरिकी कौंसल खाना कराची के निकोल थेरियोट और कौंसल खाने के दीगर अरकान ने KFC पाकिस्तान के बामकसद प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख की तरफ से तालीम, तनु और शमूलियत के लिए इक़दाम पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। US कौंसलेट कराची के नुमाइंदों ने गूंगे बहरे अफराद को अपने ऑपरेशन की फ्रंट लाइन्स पर शामिल रखने से मुतालिक जायजा लिया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि इस बात से बेहद मुतासिर हुआ हूं कि KFC ने किस तरह पूरी सरगर्मी के साथ पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सोशल जिम्मेदारी के साथ तस्वुर को नाफिज किया है। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान सिंगल विंडो ने ख़वातीन ताजरों और सनतकारों की रहनुमाई और कस्टमर सपोर्ट को फराहम करने के लिए ख़वातीन की हेल्पलाइन का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में हेल्पलाइन PSW सिस्टम और इसके मुतालिक अज्जा को दरामदाद, बरामदाद और तिजारती रेगुलेटरी के लिए इस्तेमाल करती हैं। वक्फ शुदा हेल्पलाइन कारोबारी ख़वातीन को PSW ट्रेडर्स सपोर्ट सेंटर तक तेज़ रफ्तार रसाई फराहम करेगी और उन्हें सरहद पार तिजारत से मुतालिक क़वानीन, तरीक़ाकार और ज़रूरियात के बारे में मालूमात हासिल करने में मदद मिलेगी। US पाकिस्तान विमेन कौंसिल और S&P ग्लोबल के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस बात का ऐलान US पाकिस्तान विमेन कौंसिल और S&P ग्लोबल के इश्तराक से मुनक़दा एक तकरीब में किया गया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को अगली नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए रहनुमाई बहुत अहम है। ये मुनफरिद इक़दाम स्टेम में ख़वातीन कारोबारी रहनुमाओं की हौसला अफजाई कर रहा है। पाकिस्तान और अमरीका में कॉरपोरेशंस ने अब तक 40,000 से ज़ायद ख़वातीन की सरपरस्ती का वादा किया है। उम्मीद है कि इस तादाद में इजाफा जारी रहेगा। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।